Today I am going to teach you histology of male reproductive system. Male reproductive system comprises of primary reproductive gland, that is the pair of testes. Then comes genital duct, that is epididymis, vas deferens, ejaculatory duct. Accessory reproductive gland, that is the prostate, seminal vesicle, and the bulbourethral gland, and then penis. The function of these structures are very important for viva. Now, what is the function of testis? It produces sperm cell. The male gamete, always asked in the exam, tell me what is male gamete and what is female gamete. Male gamete is a spermatozoa and female gamete is secondary oocyte. Okay. So the sperm, testis forms sperm cells as well as the testosterone, male hormone, which is responsible for the secondary sexual character. Epididymis, it is responsible for the storage and maturation of a sperm. Sperm is produced in testis, then it is mainly matured in epididymis, storage occurs. And in the vas deferens, there is transport of a sperm. And in the ampullary region, there is also storage. These three glands, prostate mainly supply glycoprotein, seminal vesicle gives fructose, and bulbourethral gland mucus. These things are very important. The examiner want to listen one proper word, that we supply fructose, we supply glycoprotein, and we supply mucus. Okay, and the seminal fluid, the 60% of the seminal fluid is by the seminal vesicle secretion. This is 25%, this is 10%, and 1 to 5% is the sperm cell. Okay, this constituent are also important, the how much percentage. Now coming to testis. Another head question, that what is the covering of testis? So from outside inward, first there is tunica vaginalis. Tunica vaginalis is the derivative of parietal peritoneum. Inside the abdominal cavity, it is parietal peritoneum. In the inguinal canal, it is processus vaginalis. And around the testis, it is tunica vaginalis. So first there is tunica vaginalis. It covers the testis all around except at its posterior end. Then comes tunica albuginea, the dense whitish elastic structure. And it is the ultrasonography evidence of a male baby, tunica albuginea, because it is present in three areas, that is in the penis, in the ovary, and in the testis. Okay, so in testis it is much dense, and it is the ultrasonographic evidence. Then comes this tunica albuginea. At the posterior end, it insinuate inside, this white one, this protrude inside the cavity. All around there is tunica albuginea, and from the posterior end, it protrudes inward like a cavity forming a pocket. That is called the mediastinum testis. And then same spicuous over the, which is joining the anterior aspect of the tunica albuginea and form lobule. Now again, the number of lobule is fixed, 250 to 300. And these lobules are lined by the tunica vasculosa. So from outside inward, there is tunica vaginalis, then tunica albuginea, and then tunica vasculosa. Within each lobule, there is 1, 2, 3 seminiferous tubule. So a total 750 to 1000 seminiferous tubule in one testis. This seminiferous tubule first form the straight tubule, then rete testis, then efferent ductule, head of epididymis, body and tail of epididymis. Then come vas deferens. This is the ampullary region. With the seminal vesicle duct, it forms the ejaculatory duct, which opens into the prostatic urethra. This is prostate.
here it opens in the prostatic urethra. So now coming to the testis, this is one seminiferous tubule, this round structure. This is seminiferous epithelium. Inside the seminiferous tubule, there are two types of cells. Spermatogenic cell and one is supporting cell. Supporting cell is known as Sertoli cell. And spermatogenic cell is the type A and type B, spermatogonia. Again, how it become mature? Spermatogonia, then spermatocyte, then primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid, and then spermatozoa. Okay. Go-CTZ. Spermatogonia, spermatocyte, spermatid, spermatozoa. स्पर्म तो सब में लगा हुआ है, बाकी गोनिया, साइट्स, टिप एंड जोआ, क्योंकि ये पूछा जाता है. Inside the seminiferous tubule, type A, type B, spermatogonia, towards the outer aspect, towards the periphery. This is gonia, then side, then spermatid and spermatozoa. It matures and differentiate. Okay, type B and type A. Type A is a stem cell, and type B is a sperm forming cell. What is the difference between a stem cell and precursor cell? A stem cell are those cells which differentiate into new cell as well as it maintains its own progeny. A will give rise to B, B will give rise to C, and A also give rise to A. So here A is the stem cell because it differentiates into another cell, that is B, as well as it maintains its own progeny, A. But B is only precursor because it differentiates from A and differentiate into C. It is not. It does not maintain its own progeny. So this is also a viva question. So in green one, this is the Sertoli cell. सर लगा ही हुआ है इसमें, सर रिस्पेक्ट देना है. क्यों? क्योंकि ये MBA किया हुआ है. MBA किया हुआ है, मतलब फिर यहाँ पे वाइवा क्वेश्चन है, इसलिए हम नेमोनिक बना दिए. मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर सिक्रीट करता है. B से ब्लड टेस्टिस बैरियर क्रिएट करता है, एंड A से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. अगर टेस्टिस का आ गया स्लाइड, मास्टर स्लाइड में, तो हो नहीं सकता है कि सर्टोली सेल का फंक्शन नहीं पूछा जाए. सर्टोली सेल वहां सपोर्ट तो कर ही रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, प्लस एमबीए सिक्रीट कर रहा है. दैट इज द मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर. मुलेरियन डक्ट का ग्रोथ को रोक रहा है. मुलेरियन डक्ट जिससे यूट्रस का फॉर्मेशन होता है, तो वो उसको सप्रेस किया. प्लस ब्लड टेस्टिस बैरियर, वो ब्लड से उसको सेपरेट किया ताकि इम्यून रिएक्शन नहीं हो जाए. और ए से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करता है. और टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल? Interstitial cell of Leydig, which lies in between the seminiferous tubule, outside the seminiferous tubule. So inside there is two cells, spermatogenic cell and the Sertoli cell, and outside interstitial cell of Leydig, which secrete testosterone. तो इसमें फिर दिख जाएगा, यहाँ पे स्पर्म सब भरा रहेगा, देखते हैं साथ आपको पता चल जाएगा. और एपिडिडाइमिस और टेस्टिस का हिस्टोलॉजिकल में रहेगा, ये पूरा राउंड राउंड रहेगा और उसमें कंप्रेस्ड ऐसा ऐसा पूरा. हाँ, ट्यूबुलर, अगर ट्यूब्यूल्स को काट दिया जाए तो कैसा सर्कुलर. हाँ, तो इस तरह से कंप्रेस्ड एंड हाईली कंप्रेस्ड और मोर इन नंबर रहेगा एपिडिडाइमिस में, क्योंकि पूरा यहाँ पे कंप्रेस हो गया है. और यहाँ टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का आता है जो कि पूरा राउंड राउंड रहेगा. कहीं पे दो जुट गया रहता है, ऊपर में जहाँ यहाँ पे सेक्शन है तो जहाँ पे मिल रहा होता है, यहाँ से अगर काट के ले लिए तो जो दो जुटा हुआ मिलता है, लेकिन फिर भी राउंड रहेगा. तो ये हो गया. फिर एपिडिडाइमिस का देख लेते हैं. तो एपिडिडाइमिस में कैसा एपिथेलियम होता है? व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम present in epididymis?
Anyone? Pseudostratified epithelium, pseudostratified columnar epithelium with stereocilia. ये वर्ड जो है पूरा सूडो लोग से भरा हुआ है. इसको पहचानने के लिए ना बहुत दिमाग का जरूरत है, सीएनएस की जरूरत है. तो 3 तरीके का होता है सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर. 3 तरीके का होता है, सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड एंड स्टीरियोसिलिया. एक ही है सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर. सूडोस्ट्रेटिफाइड डबल लेयर सूडोस्ट्रेट, लेकिन है नहीं, सिंगल लेयर है, लेकिन ऐसा लग रहा है, इट रिजेंबल्स दैट इट इज डबल लेयर बिकॉज 2 टाइप्स ऑफ सेल इन इट. One is tall cell and another is short cell vessel. A nucleus lies in the wider part, always lies in the wider part, so it looks in 2 rows, so it gives resemblance that it is multi-layered, but actually it is pseudo, meaning 1 layer. Okay, so that's why this is called pseudo. And tall columnar, so pseudostratified columnar. तो दुनिया सूडो लोग से भरा हुआ है. इसको पहचानने के लिए सीएनएस का जरूरत होता है. तो सिलिएटेड हो गया, नॉन सिलिएटेड हो गया, स्टीरियोसिलिया हो गया. सिलिएटेड, तो सिलिया कैसा, माने बाल की तरह लगता है ना, तो उड़ती हुई जुल्फे टाइप का. तो URT अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सिलिएटेड क्या होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. एंड हो गया, अब पहले एस कर लेते हैं. स्टीरियोसिलिया, स्टीरियो सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम को स्टीरियो सिस्टम भी कहते हैं. तो ऐसा लग रहा है जैसे कि फेस्टिवल वाला फीलिंग आ रहा है. तो ईद, वन ऑफ दोस फेस्टिवल इज ईद. सो ई फॉर epididymis, I for inner ear and D for ductus deferens. Stereocilia is found in only these 3 places, that is epididymis, inner ear and ductus deferens. Very important. What is the function of stereocilia? It absorbs testicular fluid and set a fluid current, and it sucks the sperm from epididymis to vas deferens and vas deferens onward. Movement करवाता है, ठीक है. उस समय मोटाइल नहीं होता है स्पर्म, लेकिन जो मसल लेयर में सिंपैथेटिक इनर्वेशन होता है, एंड प्लस स्टीरियोसिलिया जो कि फ्लूइड करंट सेट करता है, उससे सक होते हुए वो आगे बढ़ता है स्पर्म. ठीक है. तो स्टीरियोसिलिया एंड स्टीरियोसिलिया इट सेट्स फ्लूइड करंट. It absorbs 90% of the testicular fluid, and by this way, through this absorption, it sets a fluid current and responsible for the movement of a sperm. Okay, and in the inner ear, it is responsible for the mechanotransmission. तो हो गया. Nun होती है ना, वो a lady who devotes her life for others, nun, N-U-N, nun. तो वो नन किसी की सिस्टर भी हो सकती है, किसी की मदर भी हो सकती है, किसी की पत्नी भी हो सकती है. P for पत्नी, P for prostate, S for sister, S for seminal vesicle, M for mother, M for male urethra. सब एक ही जगह है, यहीं पे है ना. प्रोस्टेट हो गया, ये प्रोस्टेट हो गया, यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल है, मेल यूरेथ्रा, ये सब मेल यूरेथ्रा का. तो इसमें क्या हो गया, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर नॉन सिलिएटेड. ठीक है ना. स्टीरियोसिलिया वाला ईद बोल दिए, उसमें हो जाएगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. इस तरह से एपिथेलियम को याद किया जा सकता है. कहाँ कहाँ है, हम लोग एपिडिडाइमिस में है. तो सबसे पहले एपिथेलियम हो गया, जो कि बता दिए सूडोस्ट्रेटिफाइड नॉन सिलिएटेड सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम विद स्टीरियोसिलिया. ठीक है. और बीच में एक स्टेम सेल्स भी हो गया. उसके बाद हो गया लैमिना प्रोप्रिया. We all know that in male that the genital system and the urinary system are interlinked.
और हम लोग जाने थे जनरल प्लान यूरिनरी सिस्टम का मम्मा होता है, म्यूकोसा, मसल लेयर, एडवेंटिसिया। तो पहले म्यूकोसा हो गया, म्यूकोसा में एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। तो एपिथेलियम में वो एपिथेलियम हो गया, फिर लैमिना प्रोप्रिया हो गया, फिर मसल लेयर में हो गया, हेड में हो गया सिर्फ सर्कुलर, बॉडी में हो गया सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इसमें हो गया सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर लॉन्गिट्यूडनल। टेल में धीरे धीरे जैसे नीचे नीचे बढ़ रहे हैं स्मूथ मसल बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये मसल लेयर हो गया और सबसे बाहर में एडवेंटिसिया हो गया, वही मम्मा वाला जो है वही इसमें। तो उसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत कुछ सिमिलर होता है, बस ये कंप्रेस्ड रहेगा तो उससे पता चल जाता है। अब आ जाते हैं वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस का सबका वही मम्मा, पहले एपिथेलियम, वास्ट डिफरेंस है ईद स्टीरियोसीलिया, सूडोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनर विथ स्टीरियोसीलिया एपिथेलियम हो गया। लेकिन एपिथेलियल सेंस म्यूकोसल फोल्ड होता है, म्यूकोसल फोल्ड में एपिथेलियम लैमिना प्रोप्रिया दोनों मिलके स्टिलेट शेप्ड लुमेन बनाता है। वास्ट डिफरेंस में वेरी कैरेक्टरिस्टिक, देखते हैं साफ पहचान में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लैमिना प्रोप्रिया रहेगा, उसके बाद इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, फिर एडवेंटिसिया, वही मम्मा वाला रहेगा। तो ये हो गया वास्ट डिफरेंस। अब आ जाते हैं प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल, इसका बाकी है। तो प्रोस्टेट में आ जाते हैं। प्रोस्टेट में पूछा जाएगा कि ये किस तरह का ग्लैंड होता है, ठीक है। यू आर सेइंग दैट इट इज एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, बट बाय स्ट्रक्चर वाइज what type of gland it is, so you have to tell compound tubulo-alveolar variety, same as that of mammary gland, compound tubulo-alveolar variety। इसमें फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा होता है एंड ग्लैंडुलर पार्ट होता है, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा एंड ग्लैंडुलर। तो फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा 30% होता है और ग्लैंडुलर होता है 70%। ये पूछा जाता है क्या सिर्फ ग्लैंड ही है? नहीं, इसमें बीच बीच में फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा है। कितना परसेंटेज रहता है? तो 30% फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा और 70% ग्लैंडुलर रीजन। 3 इसका जोन होता है। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऐसे काट दिए प्रोस्टेट को, तो ये पेरिफेरल हो गया, सेंट्रल हो गया, ट्रांसवर्स, पीसीटी। ऑब्वियसली नॉट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट इज पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन, ट्रांजिशनल जोन। तो इसमें यहाँ पे ट्रांजिशनल जोन जो हुआ वहां पे म्यूकोसल ग्लैंड होता है, सेंट्रल जोन में सब म्यूकोसल ग्लैंड होता है, ठीक है। और इसमें डीप ग्लैंड्स होता है जो कि कंपाउंड मेनली इस तरह से ऐसे कंपाउंड ट्यूबुलो-अल्वेओलर वैरायटी का ऐसे ऐसे आगे की तरफ देखिएगा आप लोग अपने बुक में। सिर्फ जो म्यूकोसल वाला होता है वो ट्यूबुलर वैरायटी का होता है, बाकी कंपाउंड ट्यूबुलो-अल्वेओलर वैरायटी का होता है। तो इसका जब हम लोग स्लाइड देखते हैं तो फिर ये एसिनाइन है, ये सब एसिनाइन है। एसिनाइन का फिर एपिथेलियम है। एपिथेलियम हम लोग क्या जान लिए? सूडोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनर नॉन सिलिएटेड, है ना। किसी की पत्नी भी हो सकती है नन, तो नॉन सिलिएटेड वाला हो गया, नॉन सिलिएटेड हो गया, ठीक है। तो एपिथेलियम है, उसके बाद फिर लैमिना प्रोप्रिया है। इसमें मसल लेयर नहीं होगा, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा। तो यहाँ पे ऐसे इस तरह से फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का जैसे म्यूकोसल फोल्ड दिखेगा और बीच में कैरेक्टरिस्टिक फीचर, प्रोस्टेट सिक्रीट ग्लाइकोप्रोटीन, जो पहले बताए थे फंक्शन। तो ग्लाइकोप्रोटीन का कंक्रीशंस होता है यहाँ पे, जिसको कॉर्पोरा एमाइलेसिया कहते हैं, कॉर्पोरा एमाइलेसिया या प्रोस्टेटिक कंक्रीशंस which increases with age। फिर यहाँ पे जो बताएं कि PCT, तो ट्रांजिशनल जोन में जब ग्लैंड का ओवरग्रोथ हो जाता है तो BPH होता है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। जब सेंट्रल जोन का ग्लैंड का हाइपरट्रॉफी हो जाता है तो मेनली प्रोस्टाइटिस होता है, हाँ। और
बोन का जब ग्लैंड का हाइपरट्रॉफी होता है तो प्रोस्टैटिक कैंसर होता है। ठीक है, तीनों रीजन का अलग अलग है। इसमें हाइपरट्रॉफी होगा तो ये वो प्रोस्टैटाइटिस एंड प्रोस्टैटिक कैंसर। और बीच बीच में कर्पूरा एमाइलेसिया रहेगा, बीच बीच सब जगह फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा। सेमाइनल वेसिकल में आ जाते हैं। सेमाइनल वेसिकल में भी कौन सा एपिथेलियम है, बोलिए? सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलिएटेड कॉलमनर। तो इसमें रहता है कि ब्रांचिंग, हाईली ब्रांचिंग एंड अनास्टोमोसिक पैटर्न, म्यूकोसल फोल्ड। एपिथेलियम या लैमिना प्रोप्रिया जो है वो ऐसा सीधा नहीं रहेगा या स्टिलेट से बना के नहीं रहेगा, बहुत इतना ज्यादा फोल्डिंग रहेगा और सारा फोल्डिंग जो है ना एक दूसरे से फिर इंटरमिंगल हो जा रहा है और यहाँ पे कैविटी टाइप का बन जा रहा है जिसको क्रिप्ट कहते हैं, जो बहुत अच्छे से देखने में पता चलेगा सेमाइनल वेसिकल का। क्रिप्ट प्रेजेंट। The mucosal fold is highly branching, anastomosing, dividing and anastomosing pattern. को बोले कोई एक चीज बताओ कि यहाँ पहचान लिया जाए, रही एंड क्रिप्स प्रेजेंट। और उसके बाद एपिथेलियम तो जाने गया, लैमिना प्रोप्रिया हो गया, फिर इनर सर्कुलर, इनर लॉन्गिट्यूडनल हो गया, फिर मिडिल सर्कुलर हो गया, आउटर लॉन्गिट्यूडनल हो गया, एडवेंटिसिया हो गया। वही बम्मा वाला सब, सिर्फ एपिथेलियम बदल जा रहा है और म्यूकोसल फोल्ड का कुछ कुछ कैरेक्टर आ जा रहा है। जैसे वाज डिफरेंस में है तो स्टिलेट शेप का है। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये म्यूकस सिक्रीट करता है। यूरोजोनाइटल डायफ्राम वहां पे इस लेवल पे रहता है, बस इतना ही भर जानना है इसके बारे में। और फिर पेनिस का, इसमें 3 लॉन्गिट्यूडनली अरेंज 3 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहेगा। ऊपर में 2 है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, क्योंकि ये कैवर्नस यहाँ पे नेट लाइक हनीकॉम पैटर्न का रहता है और यहाँ है लूज एरिकुलर टिश्यू भरा हुआ है। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा, दिस इज कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। इसके अंदर रहता है पेनाइल यूरेथ्रा और इसके अंदर रहता है डीप आर्टरी ऑफ पेनिस। इसके चारों तरफ ट्यूनिका एल्बोजिनिया, हर एक के चारों तरफ ये इनर लेयर ऑफ ट्यूनिका एल्बोजिनिया है। एक होता है आउटर लेयर जो सबको एक साथ जोड़ देगा, एक तो अलग अलग से जोड़ेगा, दैट इज इनर लेयर ऑफ द ट्यूनिका एल्बोजिनिया एंड दिस इज आउटर लेयर। यहाँ पे डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस पहले, उसका डीप वेन ऑफ पेनिस। ऊपर में डॉर्सल सरफेस रहता है तो डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस, उसका डीप वेन ऑफ पेनिस। यहाँ पे डीप आर्टरी ऑफ पेनिस था, अब यहाँ पे डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, फिर यहाँ डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस। बस ऐसे ही बना, ऐसे ही रहेगा, है ना।